Assalamualaikum friends. Hello everyone. So here we are here to discuss upon accounting standard 10 property plant and equipment. This is a revised standard. Earlier it was a stand to be as fixed assets, right? So this standard has been revised, and also A6 depreciation accounting has been deleted, and the part of depreciation has been incorporated in AS10 property plant and equipment. So this is a very important standard. Now let's understand this standard. Basically, what do you mean by property plant equipment? What is the scope of a stand? And thereafter further we will move to the conceptual topics of this standards, right? So objective of this standard is to prescribe the accounting treatment of property plant and equipment, right, which helps users of financial statements to understand the information about the investment and in PPE and the changes in such investment. आपके पास कहीं ना कहीं कोई भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होता है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता है, जो आप अपने बिजनेस को रन करने में उसका यूज़ करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे ही टेंजिबल फिक्स एसेट्स में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें कितना चेंज कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट को, मतलब कोई एसेट आपने डिस्पोज ऑफ कर दी नहीं, या फिर नई एसेट परचेज की, तो हाउ मच यू आर चेंजिंग योर इन्वेस्टमेंट इन दिस एसेट्स will you will we can get to know from this accounting treatment of PPE, right? Now, principal issues in accounting for PPE. Here they are saying that which issues you may observe while accounting for PPE, right? So first of all, when your mind will start with what is PPE, right? So basically you will start with that, and thereafter you will try to understand that what are the issues that we should cover this, right? So basically I am starting with first of all the meaning of PPE, property plant equipment, right? Thereafter I am moving to modules. See, for your preference I am saying I have prepared a chart. This standard is lengthy, so I have many charts to come. You can write down this chart, you can copy this chart for your LDR. But if you read from your this chart, or you revise from this chart, it would be very easy for you. First of all, I have incorporated the language of module. I have tried to incorporate each and every concept of this standard in my chart. But I would like to say you that the chart will give a better presentation, better understanding, because I have merged the topics at one place. That can give you a better understanding of the topic, and you can revise it very well. And so for this, you can refer this chart right now. See, A stand PPE. First of all, you all will like to know what is PPE. So first we'll understand that, and then we'll move further to the module. We will learn from this chart hand by hand with the module, right? So PPE is tangible items. टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, राइट? तो वो हुआ टेंजिबल। और इनटेंजिबल ऐसा है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, यू कैन नॉट टच इट, राइट? Now, tangible items held for production and supply of goods or services, राइट? तो टेंजिबल आइटम्स ऐसे जिसको आपने हेल्ड किया हुआ है, मतलब रखा हुआ है, किस लिए? आपके गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के प्रोडक्शन के लिए। तो मतलब मानो अब एग्जांपल ले, तो गुड्स के लिए आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा हुआ है ताकि आप उसका प्रोडक्शन कर सके, राइट? फिर आपने एक ट्रक परचेज किया हुआ है ताकि आप अपना लॉजिस्टिक्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अपने गुड्स का
डिस्ट्रीब्यूशन अपने हर एक लोकेशन तक आप पहुंचा सके उसको, राइट। तो वो जो लॉजिस्टिक्स सर्विस है उसके लिए आपने ट्रक परचेज किया हुआ है, तो दैट विल बी योर एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सॉरी सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट। तो ऐसे ही किसी के लिए आपने ये हेल्ड किया हुआ है। फिर आप इसका एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया हुआ है अपनी सर्विसेज को देने के लिए, राइट। देन रेंटल टू अदर्स, या तो आपने ऐसे टेंजिबल आइटम्स को इसलिए रखा है कि आप किसी और को रेंट पे दे सके। मानो आपने इन्वेस्टमेंट किया है लैंड एंड बिल्डिंग में ताकि आप उसको रेंट पे दे सकें। सो यू वेर एवर यू आर इन्वेस्टेड इन द बिल्डिंग्स यू विल गिव दैट बिल्डिंग्स ऑन रेंट। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। या तो आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा है। एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट है, तो हर एक मतलब हर एक एंटरप्राइज को अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मेंटेन करना होता है जहाँ पे उनका सभी हिसाब किताब, सभी उनका कॉन्टैक्ट्स या सभी एक जो फ्लो चल रहा है उसको सभी को कोऑर्डिनेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी आप उसको यूज़ करें। मतलब कि मानो अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चेन है, तो आपको मतलब अपने फैक्ट्री से अपने वेयरहाउस तक, वेयरहाउस से अभी डिस्ट्रीब्यूटर के लोकेशन तक सभी गुड्स को पहुंचाना है, तो ये सब लाइन को वो कोऑर्डिनेट करता है। रॉ मटेरियल चाहिए तो सप्लायर से मंगवाओ, फैक्ट्री तक पहुंचाओ, ये सभी को कोऑर्डिनेट करता है। सेलिंग करो तो इनवॉइस बनाओ, इनवॉइस के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आपने कोई एक ऑफिस रखा है, आपने कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स रखा है, तो ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा है। टेलीफोन्स रखे हैं, राइट। तो ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखे थे। ऐसे भी चीज़ को यहाँ पे हम पीपीई में कवर करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट कंडीशन है एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। सो द मेन कंडीशन इज कि वो 12 महीने से ज़्यादा, मतलब कि एक साल से ज़्यादा के यूज़ के लिए आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये था पीपीई का मतलब। हम यहाँ पे मॉड्यूल में भी आगे देखेंगे, लेकिन मॉड्यूल में पहले दूसरी चीज़ें दी थी, इसलिए आपको ऐसा ना हो कि मीनिंग समझे नहीं और आप आगे बढ़ गए, इसलिए मैंने बीच में ये पार्ट ले लिया। सो द प्रिंसिपल इश्यूज इन अकाउंटिंग फॉर पीपीई। तो अभी ये जो पीपीई है मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आई विल यूज द अब्रिविएशन पीपीई, राइट। तो उसके अकाउंटिंग में कौन से इश्यूज आ सकते हैं? तो पहले तो पीपीई का रिकग्निशन, इनिशियल बेसिस पे ही रिकग्निशन एक प्रॉब्लम है। फिर सब्सिक्वेंट रिकग्निशन भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट्स, वो कौन से अमाउंट से कैरी होगा बैलेंस शीट में, फिर उस पर कैसे कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन होगा, कौन से अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और जो भी इम्पायरमेंट हुआ है तो उनको लॉसेस, उनके लॉसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करें। ये सभी इश्यूज जब हम पीपीई का अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे ध्यान में आते हैं। इन सभी का आंसर A10 में मिलेगा एक्सेप्ट इम्पेयरमेंट लॉसेस। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हम AS28 में पढ़ेंगे, राइट। सो इस पार्ट को हम AS28 में कवर करेंगे। बाकी सभी के आंसर आपको यहीं पे AS10 में मिल जाएंगे। मैंने आपको बोला डेप्रिसिएशन के लिए पहले AS6 था, अभी ये मर्ज होके AS10 में आ गया है, तो ये AS28 और ये सभी आपको AS10 में आंसर मिल जाएंगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, एज अ जनरल प्रिंसिपल AS10 शुड बी अप्लाइड फॉर ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ऑफ पीपीई, राइट, एक्सेप्शन व्हेन अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट्स अ डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब कि यहाँ पे आप देखो, अगर आपने फाइनेंशियल लीज पे कोई एसेट लिया हुआ है, राइट, तो वो एसेट आप लेसी के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब लेसी अपनी एसेट को कौन से कैरिंग अमाउंट से कैरी करवाना वो जानना चाहता हो तो उसके लिए AS19 है। AS10 वुड नॉट गाइड हिम, राइट। सो AS19 स्पेसिफिकली उस टॉपिक पे बात करता है और डिफरेंट ट्रीटमेंट वहाँ पे वो दे रहा है, देन ही शुड टेक द गाइडेंस ऑफ AS19, राइट। सो ये तो एक एग्जाम्पल था यहाँ पे। तो जनरली तो सभी एसेट्स पे AS10 लगेगा, लेकिन कहीं पे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स दिया हुआ है तो आप उस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को देख सकते हैं, राइट। जैसे कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के लिए हमारा AS28 भी है।
नाउ विल सी कि ए स्टैंड किन किन को एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो ए स्टैंड इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बैरर प्लांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इन सभी के मतलब हम आगे समझ रहे हैं एक एक करके, लेकिन यहाँ पे आप इतना देख लीजिए कि बायोलॉजिकल प्लांट्स को ए स्टैन एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन बैरर प्लांट्स को होगा, राइट। और ए स्टैन वेस्टिंग एसेट्स को नहीं एप्लीकेबल होगा, मतलब कि जो भी मिनरल राइट्स है या फिर जो अपना एक्सपेंडिचर किया हुआ है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ओर्स, नेचुरल गैस, उन सभी के एक्सप्लोरेशन के लिए आपने जो एक्सपेंडिचर किया हुआ वो सभी वेस्टिंग एसेट्स है, उन पे ए स्टैंड अप्लाई नहीं होगा। सो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उस पर भी ए स्टैंड अप्लाई नहीं होगा। हाँ वो हमारा एसेट है, लेकिन उस पर AS13 स्पेसिफिकली टॉक करता है, तो वो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। सो ये हुआ आपका स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड। इन सभी के मीनिंग्स आगे एक एक करके हम समझेंगे। अभी पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है। मैंने आपको मीनिंग यहाँ पे आगे समझा लिया, सिर्फ हम यहाँ पे मॉड्यूल से एक दफ़ा देख जाते हैं। तो पीपीई क्या है? वो एक टेंजिबल आइटम है, राइट, टेंजिबल आइटम। लेकिन कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई करने से वो पीपीई बनेगा? तो पहला तो वो उसलिए हेल्ड किया गया है जो आपके प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए काम आएगा, या फिर आप दूसरों को रेंटल के देने के लिए आपने उसको पकड़ा रखा है, या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आपने उसको रखा है, राइट। और दूसरा कि आप उसको 12 मंथ से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में सभी चीज़ें आ जाती है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फिनांस, अकाउंटिंग, पर्सनल। मैंने आपको बोला एडमिनिस्ट्रेटिव वही है, वो पूरा आपका कोऑर्डिनेशन करता है पूरे अपने वर्क का, राइट। जो बिजनेस एंटिटी जिस लेवल पे मतलब ऑपरेट कर रही है, उन सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को वो कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि पर्सनल है, एम्प्लॉयज़ को लाना है, वे वर्कर्स को लाना, उनको वेजेस देना, सैलरीज देना, राइट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग का पूरा चेन संभालना, इन्वॉइसेस बनाना। फिनांस एंड अकाउंटिंग, कहाँ से फंड्स इकट्ठे करना, कहाँ पे फंड एक्स्ट्रा फंड्स इन्वेस्ट करना, कैसे अकाउंटिंग करना, ये सभी उसमें आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ये नहीं कि सभी फैक्ट्री रिलेटेड, लेकिन सभी चीज़ें आपको इंक्लूड हो जाएंगी, राइट। Now, items of PPE may also be acquired for safety or environmental reasons, right? तो environmental reasons के लिए भी आप उसको purchase कर सकते हैं। The acquisition of such PPE, although not directly increasing the future economic benefits of any particular existing item, may be necessary for an enterprise to obtain future economic benefits from its other assets. So basically इसका ये मूल यही है। आप आगे पढ़ेंगे कि पीपी तभी रिकॉग्नाइज होगा जब वहाँ पे आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला हो फ्यूचर में। सो सच आइटम्स ऑफ पीपीई क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन बिकॉज दे एनेबल एंटरप्राइज टू डिराइव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द रिलेटेड एसेट्स इन एक्सेस ऑफ व्हाट कुड बी डिराइव्ड हैड दोज आइटम्स नॉट बीन एक्वायर्ड। अगर आप उस आइटम्स को नहीं परचेज करते और जो भी आपको बेनिफिट होने वाला था उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होए, तब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। So chemical manufacturer may install new chemical handling processes to comply with environmental requirements for production and storage of dangerous chemicals. Related plants enhancements as an asset, recognized as an asset. तो यहाँ पे वो environmental reasons की वजह से, मतलब पूरा इतना ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, उन सभी एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से वो एक केमिकल प्रोसेस लगाना, इंस्टॉल करना चाहता है, तो ये आप एसेट में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनवायरमेंटल रीजंस, राइट। तो आप इसको भी मार्क कर दीजिएगा। एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अभी डेफिनेशंस दिए गई हुई है, मैंने आपको वहीं पे बोला बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं लगता है, बैरर प्लांट्स पे लगता है। इस टाइम तो सभी के मीनिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हम एक बार एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। So biological asset and accounting standard on agriculture is under formulation। ठीक है, एक एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड मतलब अभी इन डेज में वो सब कवर हो जाएगा। इज अंडर फॉर्मुलेशन विच विल इंटर आलिया कवर अकाउंटिंग फॉर लाइफ स्टॉक। उसमें सभी लाइफ स्टॉक का अकाउंटिंग इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन तब तक जो भी लाइफ स्टॉक पीपीई का डेफिनेशन मीट कर जाते हैं उनको ए स्टैंड के हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, राइट, मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपीई। ठीक है, तो जो भी लाइफ स्टॉक अपना ये डेफिनेशन कवर कर लेते हैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सो बायोलॉजिकल एसेट्स दो चीज़ है, लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो भी AS10 को डेफिनेशन क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो उसमें AS10 लगेगा। ठीक है, और प्लांट्स में सिर्फ बैरर प्लांट्स में AS10 लगेगा, राइट। तो बैरर प्लांट्स क्या है, आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो बैरर प्लांट्स के यहाँ पर उन्होंने 3 कंडीशंस दिए हुए हैं। पहले वो प्रोडक्शन सप्लाई में यूज़ किया जाता है ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, राइट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वो प्रोड्यूस करता है। फिर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो वो 12 महीने से ज़्यादा प्रोड्यूस बेयर करेगा एंड हैज़ अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज अ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के फॉर्म में सेल ऑफ होगा, एक्सेप्ट कि वो इंसिडेंटली स्क्रैप सेल्स होता है वो वहाँ पे नहीं आएगा, राइट। तो जब भी बैरर प्लांट्स है जो ज़्यादा यूज़ में नहीं रहते तो उनको आप फायरवुड के लिए आप स्क्रैप ऑफ कर देते हैं, तो वो सब यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मतलब उसकी वजह से वो पीपीई का डेफिनेशन मीट नहीं करेगा ऐसा नहीं है, वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, सो फॉलोइंग आर नॉट बैरर प्लांट्स। कौन से बैरर प्लांट्स नहीं है? प्लांट्स कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो भी हार्वेस्ट किए गए हैं एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो खुद हार्वेस्ट किए गए, वो खुद एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उस फॉर्म में वो हार्वेस्ट किए गए हैं। या फिर वो प्लांट्स जो कल्टीवेट किए गए हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बनाने के लिए, लेकिन देयर इज मोर देन अ रिमोट लाइकलीहुड दैट एंटिटी विल आल्सो हार्वेस्ट एंड सेल द प्लांट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ साथ वो प्लांट को भी हार्वेस्ट करेंगे और सेल ऑफ कर देंगे अदर देन द इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। फायरवुड वाला एग्जांपल दिया, ऐसे इंसिडेंटली को जो भी स्क्रैप ऑफ हुआ उसके अलावा आप इस प्लांट को भी बेच देंगे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ साथ, तो वो बैरर प्लांट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एंड एनुअल क्रॉप्स जैसे कि मेज़ है, वीट है, राइट, ये जो गेहूँ है, वो सभी जो एनुअल क्रॉप्स है उसको भी हम यहाँ पे बैरर प्लांट नहीं बोलेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि वो प्लांट आप उसको बेचेंगे नहीं। प्लांट्स कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में आपने उसको किया तो भी नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचते वक्त आपने उसको भी हार्वेस्ट करके बेच दिया एक्सेप्ट स्क्रैप सेल्स, तो वो भी बैरर प्लांट नहीं बोला जाएगा। और एनुअल क्रॉप्स मेज एंड वीट जैसे को भी आप बैरर प्लांट नहीं बोलेंगे। सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज, राइट। नाउ what is agricultural activity? Agricultural activity is the management by an enterprise of biological transformation and harvest of biological assets or for sale or for conversion into agricultural produce into biological assets into additional biological assets। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है? ये एक मैनेजमेंट है, ठीक है, कौन सी चीज़ों के लिए जो भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं या फिर बायोलॉजिकल एसिड्स को हार्वेस्ट किया जा रहा है, चाहे सेल के लिए, कन्वर्शन के लिए या एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स के लिए, तो उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बोला जाएगा। इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा स्टैंडर्ड का सबसे मेन कंसेप्चुअल पार्ट शुरू होने जा रहा है। बहुत अच्छे से आप यहाँ पे ध्यान देंगे। कब आप पीपीई को रिकॉग्नाइज करेंगे? एक कंडीशन तो हमने आगे देखा कि जब आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होंगे
तभी, राइट। तो ये तो हमारा सबसे मेन कंडीशन है कि अगर हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में मिलने वाला है इस पीपीई से, तो ही आप उसको पीपीई के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे। हालांकि दूसरा भी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आप पीपीई का कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस जब फुलफ़िल होगी तब आप अपने पीपीई को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो जब भी आगे मैं ऐसा बोलूँगी कि पीपीई के क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, मतलब कि पीपीई के डेफिनेशन को और रिकॉग्निशन की बात होवे, तब मैं अच्छे से बोलूँ कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करे तो ये होगा हमारा इसका सॉरी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करना करे तो ये होगा ये वाला, ठीक है। सो दिस आर द टू कंडीशंस, यू कैन नोट इट डाउन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप अपने एग्रीगेट जो भी इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है पीपीई में ऐसा ही नहीं होता है कि सभी आइटम्स मतलब सभी वही होते हैं, सभी आइटम सिग्निफिकेंट ही होते हैं, लेकिन इनसिग्निफिकेंट आइटम्स भी होते हैं, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स हो, मशीनिंग टूल्स हो, तो वैसे इनसिग्निफिकेंट आइटम्स भी होते हैं। तो आप उन सभी को एक जगह पे क्लब करके एग्रीगेट करके, मोल्ड्स है, टूल्स है, डाइज है, ये सभी एग्जाम्पल, तो उन सभी को एग्रीगेट करके आप अपना पीपीई का क्राइटेरिया लगा के एग्रीगेट वैल्यू पे आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो भी आइटम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, तो मटेरियल नहीं है, तो आप उनको एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, राइट। एक्सपेंडिचर इज़ नॉट मटेरियल, तो आप उसको एक्सपेंस्ड ऑफ कर देंगे, मतलब कि पीएनएल में डाल देंगे, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे पीपीई में, राइट। सो when do we apply the above criteria of recognition? All enterprise evaluates under this recognition principle all its cost on PPE at the time when they are incurred. जब ये cost incur होती है तब हम ये PPE का recognition principles check करते हैं, ठीक है। So this was what about recognition. This cost includes cost incurred initially, subsequently, to acquire or construct, to add, to replace part of or service it, right। मैं इसके लिए मेरे चार्ट से आपको पढ़ाती हूँ, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देखेंगे आपको रिकॉग्निशन कंडीशंस तो समझ में आ गई ना। अभी आपको से पूरा अच्छे से मैंने रिकॉग्निशन वाला चार्ट यहाँ पे कवर कर लिया है। आप देखेंगे से पूरा ये रिकॉग्निशन का है, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सी ये पूरा हमारा चार्ट रिकॉग्निशन का ही है, पूरा हाफ चार्ट, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, यहाँ पे हमने ये बात कर ली, ये पूरा आधा चार्ट ये हमारा रिकॉग्निशन के लिए है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, राइट। ये भी मैंने एक साथ कवर कर लिया है। और इनिशियल में भी 3 पार्ट्स है, कैश और क्रेडिट, डिफर्ड क्रेडिट टर्म्स,
सेल्फ कंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज विद अनदर एसेट, सभी को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, यू कैन सी इट। फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में भी पार्ट्स है, या तो वो एक्सपेंडिचर है सर्विसिंग का, राइट, तो वो भी दोनों मैंने कवर कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे सभी रिकॉग्निशन के केसेस को एक साथ एक जगह पे कवर कर लिया है। मैं यहाँ से आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। तो एसेट इज अक्वायर्ड बाय कैश पेमेंट, राइट। तो आपने एसेट को कैसे अक्वायर किया है? पेमेंट करके। तो पेमेंट कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। क्रेडिट में भी दो क्लासिफिकेशन है। क्रेडिट में नॉर्मल क्रेडिट पीरियड टर्म्स में आपने उसको अक्वायर किया, या तो बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स यानी कि डिफर्ड क्रेडिट, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स 1 महीना, 2 महीना, 12 महीना के अंदर का साइकिल जनरली होता है, या 3 महीना, 4 महीना, राइट, 90 डेज में पीरियड में आपको पेमेंट हो जाएगा। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की बात है। लेकिन जब भी डिफर्ड क्रेडिट टर्म्स की बात करें, बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, तो उसका भी अलग से दिया गया हुआ है। तो पहले हम नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स वाले क्रेडिट और कैश पेमेंट की बात करते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी और कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होगी? इंक्लूड में बोला है 3 है। मेजरमेंट कम करेंगे जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे। 3 चीज़ें आप देखने की हैं, ठीक है। परचेज प्राइस, राइट, पहले हमने बोला कि परचेज प्राइस को आप लेंगे, राइट। फिर डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एंड फिर डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटीज। इसका मतलब मैं आपको अलग से समझाती हूँ, राइट। डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मतलब जो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर किया गया, उसको आप डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बोलेंगे। और परचेज प्राइस, जो जिस प्राइस से आपने उस एसेट को खरीदा, वो आपका परचेज प्राइस होगा, राइट। मैंने ये दो तो के मीनिंग आपको समझा दिए, परचेज प्राइस, डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अभी डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटीज मतलब कि आपको उसको डिसमेंटल करके देने का है। मानो आपको बोला गया है कि ये एसेट आप यूज़ करें 12 मंथ्स पीरियड, सॉरी 12 ईयर्स पीरियड के लिए, फिर आप मेरे को जो फॉर्म में अभी है उस फॉर्म में वापस देंगे, तो उसके लिए आपको रिस्टोरेशन करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, या फिर डिसमेंटल करने के लिए, या फिर उसने बोला कि ये ज़मीन मुझे ऐसी कोरी पड़ी चाहिए, मतलब आपने जो भी कंस्ट्रक्ट किया उसको डिसमेंटल करके आप मेरे को देंगे, तो उसको पूरा तोड़ा खड़ा के, डिस्ट्रॉय करके, डिसमेंटल करके आप पूरा पूरा मतलब जो प्लेन प्लॉट है, मतलब ज़मीन है, वो आप उसको देंगे वापस। तो ये है डिकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटीज। अगर उन्होंने कंडीशन ही ऐसा रखा है कि जब मैं वापस लूँगा तब ये सब ऐसे इस फॉर्म में ये हमारा एसेट होना चाहिए, तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आपको उनको ये चीज़ें करके देनी होगी, राइट। तो ऐसी लायबिलिटीज़ आपके सर पे हैं। तो ये हुआ तीनों चीज़ों का मतलब। जब हम परचेज प्राइस की बात करें, जो भी कॉस्ट आपने पे किया वो प्लस और जो भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ है आप उसको ऐड करेंगे, और जो भी आपको ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स मिला हुआ है आप उसको रिड्यूस करेंगे, राइट। फिर जब हम डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की बात करें, तो उसके एग्जाम्पल्स हमें मॉड्यूल ने दिए हुए हैं कि कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कॉस्ट ऑफ site preparation, initial delivery and handling cost, installation and assembly cost, cost of terms, right, and professional fees। तो ये सभी एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं। अभी ये इतना पॉइंट हम पहले हमारे मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको वापस से पूरा अच्छे से आपको करवाती हूँ। अंडरस्टैंड? सी questions।
आप अगर देखें यहाँ पे से इनिशियल रिकग्निशन में तो बोल ही लिया है, ये स्पेयर पार्ट्स का है, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाई इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट का बोला है। ये हम आगे देखते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, मेजर इंस्पेक्शंस, C. Cost of an item includes purchase price, directly attributable cost and decommissioning. ठीक है। सो परचेज प्राइस क्या है, उसमें परचेज प्राइस में जो आपने कॉस्ट पे किया उसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज ऐड होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, रिबेट माइनस होगा, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है। डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में मैंने आपको बोला जो भी कॉस्ट लगा है आपको ब्रिंगिंग एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड मेकिंग इट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, राइट। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, जो एसेट केपेबल था ऑपरेटिंग के लिए जिस तरह से मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया था, फिर भी आप इस कॉस्ट को इनकर कर रहे हैं तो ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। जो भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हुए हैं ट्रायल रन के, वो सभी को बिल्डअप कॉस्ट हुआ है, आप नहीं इंक्लूड करेंगे। और रिलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट, मतलब कि आपने मानो कि ये प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री के इस लोकेशन में रखा था, फिर आपने लोकेशन चेंज किया और वो लोकेशन चेंज करने की वजह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा आपको अलग से, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे तो एसेट रेडी टू यूज़ था, आपने अपने खुद से ही एडिशनल एक्सपेंडिचर किया है तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। या फिर रीऑर्गेनाइज किया अपने मतलब पूरा जो एसेट है उसको, तो भी ये यहाँ पे ये खर्चा इंक्लूड नहीं होगा, राइट। फिर उन्होंने उनके एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिए, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, जो भी टेस्ट आपने उसके किए हो, प्रोफेशनल फीस आपने पे की हो, राइट ना। उसमें कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी पीपीई में, तो वो कॉस्ट जो आपने एक न्यू फैसिलिटी ओपन की है या फिर नई ब्रांच ओपन की है और उसका इनिग्रेशन का कोई भी खर्चा लगा तो वो पीपीई में इंक्लूड नहीं होगा। फिर आपने कोई नई प्रोडक्ट या नई सर्विस इंट्रोड्यूस की मार्केट में और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया तो वो भी पीपीई में इंक्लूड नहीं होगा। फिर आपने कोई बिजनेस को न्यू लोकेशन पे ओपन आउट किए या फिर नई क्लास ऑफ कस्टमर्स में आपने अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो उसके लिए जो भी स्टाफ ट्रेनिंग का, जो भी लोकेशन का खर्चा आया, आप उसको पीपीई नहीं बोलेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल ओवरहेड कॉस्ट को भी आप पीपीई के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। फिर ये था हमारा पूरा पीपीई के कौन से कॉस्ट नहीं इंक्लूड होगी। अभी आप आगे देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, इनकम में बी अर्न थ्रू यूजिंग अ बिल्डिंग साइट एज अ कार पार्क अंटिल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, राइट। उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पे एक साइट है तो आप उसको बिल्डिंग बनाने से पहले कार पार्क के तौर पे आप उससे इनकम कर सकते हैं, राइट। Because incidental operations are not necessary to bring an item to present location and condition necessary for it to be capable of operating in manner intended by management. Income and related expenses of incidental operations are recognized in profit and loss. तो जब तक आप उसको बिल्डिंग वहाँ पे बनाओ और अपने खुद के ऑपरेशन स्टार्ट करो, तब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो तब तक आपने अगर उसको कार पार्क के तौर पे दिया ताकि आपको इंसिडेंटल इनकम हो सके, तो जो कार पार्क बना मतलब कार पार्क के लिए जो भी आपको इंसिडेंटल एक्सपेंस मतलब कोई भी खर्चा लगा या फिर कार पार्किंग के तौर पे आपने उस लैंड को दिया तो उससे आपको जो भी इनकम आया वो सभी आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। उसको पीपीई में नहीं इंक्लूड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। फिर एंटिटी ए हैज़ अ एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी विच इट इंटेंड्स टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड the company will move its production facilities to another temporary site. Following incremental cost will be incurred. एक एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी था लेकिन अभी उनको रीडेवलप करना है उसको और उनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है फॉर अ टेम्पररी साइट, क्योंकि उनको ये सभी रीडेवलपमेंट करना है। तो ये जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगा न्यू लोकेशन पे आप उसको पीपीई में इंक्लूड नहीं करेंगे।
फिर आपको उसके लिए जो भी रेंट लगा उसको भी आप पीपीई में इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो भी रिमूवल कॉस्ट लगा ओल्ड लोकेशन से टेम्पररी लोकेशन के लिए वो भी आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सभी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, वो कॉस्ट नहीं है जो आपके पीपीई को बनाने में या उसको ऑपरेट करने में लगे। तो ये सभी कॉस्ट को आप अवॉइड भी कर सकते थे, इसलिए वो पीपीई के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है। राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। राइट, तो ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था। आगे आपको मैंने ये चीज़ अच्छे से समझाई। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स इसलिए कवर करती जाती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। फिर इलस्ट्रेशन 5, entity A, which operates a major chain of supermarkets, has acquired a new store location. New location requires significant renovation expenditure. Management expects that renovation will last for 3 months, for during which supermarket will be closed. Management has prepared the budget for this period, including expenditure related to construction and remodeling costs, salaries of staff who will prepare store before its opening, and related utilities cost. तो देखिए, ये जो रीमॉडलिंग का कॉस्ट है, रिनोवेशन करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग का कॉस्ट है, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं पीपीई के तौर पे। राइट, लेकिन जब आप बात करें ये जो स्टाफ को सैलरी दिया उस वक्त के लिए, वो स्टोर में आपको मदद कराए, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो कर दे, तो ये जो नॉर्मल ऑपरेटिंग खर्चा है तो आप उसको पीपीई में नहीं ले जाएंगे। राइट, ये पीएनएल में चला जाएगा और ये पीपीई में कैपिटलाइज हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। राइट, आप यहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं, जो भी कॉस्ट लगा वो आप उसको कैपिटलाइज करेंगे, और ये जो था वो तो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग खर्चा है, इसलिए आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाने देंगे। राइट, next illustration. An amusement park has a soft opening to public to trial run its attractions. Tickets are sold at 50% discount during this period, and the operating capacity is 80%. Official opening day of amusement park is 3 months later. Management claimed that soft opening is a trial run necessary for amusement park to be condition capable of operating in intended manner. Accordingly, net operating cost incurred should be capitalized. तो जो भी आपने ये ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा ट्रायल रन करने के लिए, आप उसको कभी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, आपको उसको फुल्ली प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देना होगा। ये पूरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो आप उसको एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। राइट, तो ये था ये एग्जाम्पल। राइट, जो भी स्टार्टअप पीरियड के लिए जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। फिर डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर सिमिलर लाइबिलिटीज़। मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज़ ना, देखो इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, कोई भी चीज़ को डिसमेंटल करने के लिए या फिर आइटम्स को रिमूव करने के लिए या फिर लोकेशन को, मतलब वो साइट को पूरा पहले की तरह से रिस्टोर करने के लिए जो भी ऑब्लिगेशन एंटरप्राइज ने उठाया हुआ है कि हाँ हम ऐसा खर्चा इनकर कर लेंगे एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग इट टू यू, तो कॉन्सिक्वेंटली ये ऑब्लिगेशन आपके लायबिलिटी आपके सर पे खड़ा हो गया है, तो उसको आप अक्वायर्ड और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग यूज द आइटम, क्योंकि आपने उस आइटम को अक्वायर किया या यूज़ किया, उस वजह से उस कॉन्सिक्वेंस से ये खर्चा आपके ऊपर आया है। अगर आपने ये एसेट नहीं यूज़ किया होता तो ऐसा कोई खर्चा नहीं आता, तो उस वजह से इसको आप कैपिटलाइज करेंगे। राइट, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर पर्पस अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंट्रीज, तो आप इसको कैपिटलाइज करेंगे, पीपीई में इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एन एंटरप्राइज अप्लाइज AS2 टू कॉस्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रिस्टोरिंग साइट टू विच एन आइटम इज लोकेटेड that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventories। जो भी इन्वेंट्रीज प्रोड्यूस करने के लिए आपने जिस एसेट को डिसमेंटलिंग रिमूविंग का ऑब्लिगेशन उठा लिया है, तो ऐसे को आप AS2 के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे, AS10 के हिसाब से नहीं। राइट, और दोनों ही AS29 के हिसाब से कॉन्टिजेंट लायबिलिटी प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट एसेट्स के हिसाब से आपको एक प्रोविज़न खड़ा होकर देना पड़ेगा, तो दोनों ही AS29 में जाके मर्ज हो जाते हैं। राइट,
तो ये हुआ आपका पूरा रिकॉग्निशन का तीनों पार्ट्स। इनिशियल रिकॉग्निशन, ठीक है, उसमें हमने देखा कि तीन पार्ट्स हमने देख लिए। कैश क्रेडिट में इंक्लूड्स के तीनों पार्ट्स हमने देख लिए, और एक्सक्लूड्स के भी आपने देखे कि जो न्यू फैसिलिटीज़ बिजनेस का है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट है, न्यू लोकेशन है, न्यू क्लास ऑफ कस्टमर है, उन सभी को आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। हम यहाँ से अभी ये लास्ट 3 पार्ट्स देखते चलते जाते हैं। डिफर्ड क्रेडिट मतलब नॉर्मल क्रेडिट टर्म से आपने उसको बियॉन्ड किया हुआ है। तो ऐसा जब होता है तो आप पीपीई को कौन सी वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो पीपीई को आप कैश प्राइस इक्विवेलेंट ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब का आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। आपको माना कि एक एसेट परचेज करने गए, आपने उसको बोला मैं 2 साल के डिफर्ड क्रेडिट टर्म्स पे परचेज करता हूँ, राइट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपका प्राइस है 30 लाख रुपीज़ या मानो 40 लाख रुपीज़, राइट। तो आपने बोला ठीक है। तो अगर आप उसको कैश पे अभी परचेज कर लेते तो शायद वो 35 लाख रुपीज़ में आ जाता। तो जो बेसिकली ये 5 लाख का डिफरेंस है वो एक इंटरेस्ट है जो उन्होंने 2 साल का उनका कवर किया हुआ है। तो ये जो 40 लैक्स में आपने उसको परचेज़ किया उसको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे और वो कैश प्राइस आपका होगा इक्विवेलेंट टू द डेट ऑफ रिकॉग्निशन। आप उससे अपने पीपीई को रिकॉग्नाइज करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू लिखा है, राइट। फिर आपको इंटरेस्ट जो है वो भी रिकॉग्नाइज करना होगा। इंटरेस्ट कौन सा? जो आपने टोटल पेमेंट किया 40 लैक्स एंड कैश प्राइस है 35 लैक्स। तो जो बेसिकली ये डिफरेंस आया ये आपका इंटरेस्ट है। अगर ये इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो आप उसको बोरोइंग कॉस्ट के क्राइटेरिया सभी मैट हो जाते हैं तो बोरोइंग कॉस्ट के तरफ पे कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट किसी और एसेट्स के लिए है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे, राइट। तो ये हुआ आपका डिफर्ड क्रेडिट टर्म्स का अकाउंटिंग। फिर हम बात करते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्शन एसेट्स की। आपने एसेट को अक्वायर नहीं किया लेकिन खुद कंस्ट्रक्ट किया है, तो आप ऐसे एसेट्स को कौन सी वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपको लगा वो पूरा खर्चा प्लस जो भी अदर एक्सपेंसेस लगा वो प्लस जो बोरोइंग कॉस्ट आपने इनकर किया, राइट, एसेट रेडी टू यूज़ होने से पहले, वो सभी को आप सभी के टोटल करके आप अपना एसेट उस वैल्यू से दिखाएंगे। लेकिन मार्केट के इंटरनल प्रॉफिट्स जो हुए, डिपार्टमेंट मतलब एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अंदर ही अंदर आपकी कंपनी का जो डिपार्टमेंट था उन्होंने एक डिपार्टमेंट ने स्टोर्स डिपार्टमेंट ने अपने ये जो आपका कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने उनको दिया स्टोर्स का, आप हाँ ले ले उसको। तो जो भी इंटरनल प्रॉफिट्स हुआ आपको स्टोर्स देने से वो सभी यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ये आप उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर जो भी मटेरियल लेबर में आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ हो उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो ये हुआ सेल्फ कंस्ट्रक्शन के अकाउंटिंग का। फिर हम रिकॉग्निशन का। फिर हम बात करें एक्सचेंज विथ अनदर एसेट्स। अगर आपने कोई एसेट लिया इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, तो जो भी एसेट गिवन अप हो या फिर एसेट रिसीव्ड हो जिसका भी फेयर वैल्यू आप रिलायबली मेजर कर सके, उस फेयर वैल्यू से आप अपना एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। तो ये इनिशियल रिकॉग्निशन के सभी क्राइटेरिया को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, राइट। सी कॉस्ट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेंगी। देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट इज़ यूजुअली द सेम एज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। फिर इंटरनल प्रॉफिट्स को एलिमिनेट करना है, एबनॉर्मल अमाउंट्स को एलिमिनेट करना है, A16 बोरोइंग कॉस्ट को कंपोनेंट बनाना है, और बैरर प्लान्स जो मैंने आपको बोला ये जो AS10 में कवर होते हैं वो भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के हिसाब से आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। तो ये भी आपको हमने समझा दिया। अभी आगे चलते हैं मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको बोला अगर ये डिफर्ड है बियॉन्ड क्रेडिट टर्म्स से, राइट, तब आप उसको कैसे मेजर करेंगे? टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस इक्विवेलेंट। आप जनरली अपने एसेट को कौन से प्राइस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? कैश प्राइस पे, राइट, जो भी रिकॉग्निशन डेट के ऊपर हो। लेकिन जब आप डिफर्ड क्रेडिट कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट आएगा टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस, तो इस इंटरेस्ट को आप एक्सपेंस आउट कर देंगे अनलेस कि वो A16 का क्राइटेरिया मैट करता है। और अपने एक्सचेंज में किया है तो इट विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, राइट।
unless the exchange transaction lacks commercial substance and fair value is neither of the assets is measured reliably। तो दोनों भी एसेट्स का फेयर वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते, या फिर जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कमर्शियल सब्सटेंस को लैक कर रहा है, तब आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, राइट। Acquired item is or are measured with the manner even if an enterprise cannot immediately recognize। See, आप तो तुरंत डी रिकग्नाइज नहीं कर सकते, इसलिए आपको मेजर करना पड़ेगा। फिर अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको कॉस्ट पे मेजर कर दे। और जो भी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हुआ है जो कमर्शियल सब्सटेंस पे हुआ है, तो आप उसमें देखेंगे कि फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है या नहीं। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस और नॉट। तो ये जो कमर्शियल सब्सटेंस का आपको जानना है, तो उसके लिए 3 कंडीशंस है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश फ्लोज ऑफ एसेट्स रिसीव्ड आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश फ्लोज ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड, राइट। दोनों का कैश फ्लो डिफरेंट है। फिर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पोर्शन ऑफ ऑपरेशंस आर अफेक्टेड बाय ट्रांजेक्शन चेंजेस, और डिफरेंस आ रहा है दोनों की फेयर वैल्यू में भी। तो ये हुआ आपका, ये थियोरेटिकल है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपके चार्ट में भी कवर नहीं किया है। अभी आप देख सकते हैं एंटिटी ए एक्सचेंजेस सरप्लस लैंड विद बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख फॉर कैश ऑफ 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 25 लाख। तो आप उस प्लांट एंड मशीनरी पे कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे? आपने 20 लाख का कैश दिया हुआ है और 25 लाख को उस पर वैल्यू किया हुआ है, तो 45 लाख उसका फेयर वैल्यू बनेगा, राइट। जो प्लांट एंड मशीनरी आपने 25 लाख पर रिकॉर्ड की है, वो इक्विवेलेंट है लैंड के 45 लाख के। मतलब कि फेयर वैल्यू ऑफ लैंड कितना हुआ? 45 लाख। आपने उसके बदले में प्लांट एंड मशीनरी के बदले में लैंड दिया हुआ है। तो लैंड की वैल्यू कितनी हुई? कैश 20 लाख प्लस प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख, मतलब कि 45 लाख की फेयर वैल्यू हुई लैंड की। हालांकि बुक वैल्यू सिर्फ 10 लाख है, राइट। नाउ कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई में बी रिड्यूस बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स। आप उसको गवर्नमेंट ग्रांट्स की अमाउंट से रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। अभी ये मेजरमेंट और रिकग्निशन की बात है। कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल, वो जो हमने उसमें पहले छोड़ा था एक सब्सिक्वेंट वाला, वो पहले हम देख लेते हैं। सी, यहाँ पर उन्होंने स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट बताया हुआ है। इसमें 2 केस है। अगर ये ए स्टैंड पीपीई के क्राइटेरिया को मीट कर जाए, पीपीई के डेफिनेशन को, तो वो ए स्टैंड के हिसाब से होगा, या अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप उसको AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री बोल देंगे, राइट। उसका एक वो है कि एंटिटी ए सुपरमार्केट चेन इज रिनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर्स have more available space in store promotion outlets after renovation and will include a restaurant। तो रिनोवेशन के बाद उसको जगह ज़्यादा मिलेगी, तो वो एक रेस्टोरेंट भी ओपन करेगा। तो मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट्स फॉर द ईयर इधर द स्टोर after the store reopens, which include the cost of remodeling and expectation of 15% increase in sales, right, resulting from the store renovations which will attract new customers, state whether remodeling cost will be capitalized or not। तो आपको फ्यूचर बेनिफिट से 15% से आपका सेल्स में बढ़ोतरी होगी, राइट। तो ये भी आप देख सकते हो, और रिमॉडलिंग का खर्चा आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं। दोनों क्राइटेरिया मीट हुई, मतलब पीपीई का क्राइटेरिया मीट हो गया, इसलिए रिमॉडलिंग का एक्सपेंडिचर आप कैपिटलाइज करेंगे, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर सब्सिक्वेंट कॉस्ट की बात की है कि बाद में आपको एसेट में कोई भी डे टू डे सर्विसिंग करवाना पड़े,
तो ये बेसिकली लेबर और कंज्यूमेबल्स का खर्चा होता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स का, वो आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस में होता है, राइट। तो वो आप जनरली कैरिंग अमाउंट में रिकॉग्नाइज को नहीं करते, लेकिन आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते हैं एज अ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, राइट। फिर रिप्लेसमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ पीपीई, जब कोई भी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है आपको रेगुलर इंटरवल्स पे, उसके एग्जांपल्स हैं, मतलब कि मानो कि एयरक्राफ्ट तो पूरा ठीक का ठीक ही, लेकिन अंदर के सीट्स को आपको चेंज करना पड़ा, राइट। और फर्नेस में रिक्वायर रीलाइनिंग, या फिर एयरक्राफ्ट के इंटीरियर में चेंज करना पड़ा, या फिर कन्वेयर सिस्टम में कन्वेयर बेल्ट वायर रोप्स को चेंज करना पड़ा, इंटीरियर वॉल्स, बिल्डिंग तो अच्छा ही है लेकिन अंदर के इंटीरियर वॉल्स को रिप्लेसमेंट करना पड़ा। तो ऐसे रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे, जो भी रिप्लेसिंग पार्ट का खर्चा हुआ आप उसको कैरिंग अमाउंट में डाल देंगे अगर वो पीपीई का क्राइटेरिया मीट करता है। और जो भी पहले खर्चा हुआ था प्रीवियसली रिप्लेसमेंट का, आप उसको डी रिकग्नाइज कर देंगे फ्रॉम, यहाँ पे डी रिकग्नाइजेशन का स्टैंडर्ड में आगे बोलेंगे, उस हिसाब से आप उसको डी रिकग्नाइज कर देंगे, राइट। तो ये हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। फिर रेगुलर मेजर इंस्पेक्शंस, आप जो भी मेजर इंस्पेक्शंस करें तो कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे अगर वो रिकग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करता है, और जो प्रीवियस इंस्पेक्शन का कुछ भी बचा कुछ अमाउंट हो तो आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, राइट। सी तो सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में हमने समझा कि अगर आप पार्ट को ऐड कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं और वो पीपीई का डेफिनेशन फुलफिल करता है तो AS 10, ठीक है, और उसके यूज़फुल लाइफ पे आप उसको डिप्रिसिएशन भी देंगे। और जब भी आप प्रिंसिपल पीपीई मतलब मेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को सेल करेंगे तब इनके पार्ट्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर देंगे। और अगर वो पीपीई का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो AS 2 के हिसाब से इन्वेंट्री बनेगा, राइट। फिर अगर डे टू डे सर्विसिंग का कोई खर्चा है तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर वो पीपीई का क्राइटेरिया मीट करता है, वरना आप उसको PNL में डाल देंगे, राइट। फिर हमने देखा रेगुलर मेजर इंस्पेक्शंस, तो आप इंस्पेक्शंस के खर्चे को कैरिंग अमाउंट में डाल देंगे और प्रीवियसली इंस्पेक्शंस खर्चे का जो भी बचा कुछ अमाउंट है कैरिंग, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, उसको आप डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आप जो भी पार्ट्स का तो आप उसको कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देंगे और ओल्ड पार्ट्स को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिकग्निशन वाला पूरा चार्ट कंप्लीट। आप उसको यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं और उसको आप स्क्रीन पे मैंने रखा है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट पे। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। What happens if cost of previous part or inspection was not identified in transaction in which item was acquired? Derecognition occurs regardless whether cost of previous part was identified or not. तो derecognition तो होगा ही, भले ही आप उन्हें उसको प्रीवियसली रिकॉग्नाइज किया आइडेंटिफाई किया हो या ना किया हो, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। फिर व्हाट विल बी योर आंसर इन अबाउट क्वेश्चन इफ़ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एंटरप्राइज टू डिटरमाइन कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट। तो जो भी एस्टिमेट कॉस्ट आपको लगा है ऐसा कुछ इंस्पेक्शन करने में सिमिलर, ये आपका इंडिकेशन है रिप्लेस पार्ट का कॉस्ट, ठीक है। तो उस तरह से आप उसका कॉस्ट रिकग्नाइज कर लेंगे। अभी हम मेजरमेंट की बात करते हैं, तो जब रिकग्निशन के वक्त मेजरमेंट करो तो हमेशा कॉस्ट मॉडल पे करेंगे, एट रिकग्निशन कॉस्ट मॉडल, लेकिन आफ्टर रिकग्निशन तो कॉस्ट और रिवोल्यूशन दो मॉडल हमारे पास है, राइट। सो a PPE that qualifies for recognition should be measured at its cost। जो भी PPE क्वालिफाई होता है वो सभी कॉस्ट पे मेजर होगा। और कॉस्ट के एलिमेंट्स हमने आपने
पहले ही देखें, इंक्लूड्स परचेज प्राइस, डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज, एंड एक्सक्लूड्स न्यू फैसिलिटी, बिजनेस का खर्चा, cost relating to introducing a new product service, cost relating to new introducing new location or new class of customer, administrative general overheads, right? क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा ये सब भी हमने पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा आगे जाने देती हूँ, हमने मेजरमेंट में कॉस्ट वाला पार्ट देख लिया है। तो ये हमारा कॉस्ट मॉडल है, राइट? ये एग्जांपल भी हमने कवर कर लिया है। सो ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, सभी की बातें हो चुकी हैं। एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल भी हमने देख लिया था। अभी हम आते हैं इलस्ट्रेशन 8 पे। एक्सचेंज ऑफ एसेट दैट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। एंटिटी ए एक्सचेंजेस कार एक्स विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 13 lakh and a fair value of 13,25,000 for a cash of 15,000 and car Y which has a fair value of 13,10,000. The transaction lacks commercial substance as the company's cash flows are not expected to change as a result of exchange. It is the same position as it was before, right? तो जो भी पहले भी 13,25,000 का फेयर वैल्यू था और आफ्टर एक्सचेंज भी 13,25,000 का होगा। तो दिस लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, राइट? कब ये कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है, इसका आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था। सो एंटिटी रिकॉग्नाइजेज द एसेट्स रिसीव्ड एट बुक वैल्यू ऑफ कार एक्स। तो आप बुक वैल्यू पे ही उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे 13 लाख पे। Therefore, it recognizes cash 15,000 and car Y as PPE with the carrying amount of 12,85,000. ठीक है, ये हुआ हमारा ये इलिस्ट्रेशन। ये भी आप अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेना। मतलब हटके से पूछना हो तभी ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। नाउ PPE परचेज फॉर अ कंसोलिडेटेड प्राइस। अगर आपने कंसोलिडेटेड प्राइस पे PPE को परचेज किया हुआ है तब आप उसको अपोर्शन करेंगे उसके कंसिडरेशन को रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यूज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से। और अगर आपने फिनांस लीज के अंडर लिया है तो आप AS 19 को रेफ़र करेंगे। और कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट्स हो तो आप उसको AS 12 के हिसाब से कैरिंग अमाउंट में रिड्यूस कर देंगे, राइट? सो ये तीनों चीज़ आपको समझ आ गई ना। ये शायद मैंने अपने चार्ट में कवर नहीं की है, तो आप इन सभी को अच्छे से यहाँ से पढ़ लीजिएगा। कंसोलिडेटेड प्राइस AS 19, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू PPE। नाउ मेजरमेंट और रिकग्निशन में देखा कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल। क्लास ऑफ PPE, अब आप सिमिलर नेचर के एसेट्स को ग्रुप कर दे तो वो क्लास ऑफ PPE बन जाएगा। जैसे कि लैंड है तो लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, सभी को इंक्लूड कर दे। फर्नीचर का बोलो तो सभी फर्नीचर को इंक्लूड कर दे, राइट? व्हीकल्स का बोलो तो मोटर व्हीकल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट सभी को इंक्लूड कर दे। तो ये सभी एक क्लास ऑफ PPE हुआ। कॉस्ट मॉडल की बात करें तो इसका मैंने चार्ट बना लिया है। कॉस्ट मॉडल की जब बात करें तो आप एसेट को कैसे कैरिंग अमाउंट से दिखाएंगे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस, ठीक है। और जब रिवोल्यूशन मॉडल की बात करें तो फेयर वैल्यू एट डेट ऑफ रिवोल्यूशन माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस, और ये बन जाएगा आपका कैरिंग वैल्यू, राइट? और क्लास ऑफ PPE का रिवोल्यूशन हो रहा है तो पूरे सभी आइटम्स का आपको रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। पूरे क्लास ऑफ PPE का रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। किसी का करे किसी का नहीं करे ऐसे नहीं चलेगा, राइट? जब क्लास ऑफ PPE की बात हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल, राइट? एक बात है कि रिवोल्यूड अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से बढ़ नहीं जानी चाहिए, राइट? The entire class of PPE shall be revalued and active assets of class shall not be, selective assets of class shall not be revalued, right? ये selective है।
नाउ रिवोल्यूशन ऑन अ क्लास बाय क्लास बेसिस. एक एग्जांपल है, एंटिटी ए इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप. इट ओन्स अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स सच एज फैक्ट्रीज, वेयरहाउस and office buildings, right? Industrial buildings are located in industrial zones, office buildings in central business districts. Entity A's management wants to apply revolution model as per A's stand to subsequent measurement of office buildings but continue to apply historical cost model for industrial buildings. ये पूरा बिल्डिंग का एक क्लास बना लिया है और ऑफिस बिल्डिंग को वो रिवैल्यू करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को नहीं. तो क्लास में तो सभी आइटम्स को आपको रिवैल्यू करना होगा, राइट. यू नीड टू अवॉइड सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, राइट, बिकॉज जब मिक्सचर होके जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स का अमाउंट होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है. एक ही डेट पे रिवैल्यूएशन करके आपको दिखा देने का है. आगे मैं हमारे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इस चैप्टर इस स्टैंडर्ड की आगे की बात करूँगी, राइट. आप इस चार्ट को अच्छे से देख लें और रिवाइज कर लेना. ये पीपीई का मीनिंग है देखा, फिर हमने स्कोप देखा कि AS10 किसको एप्लीकेबल नहीं है, फिर हमने पूरा रिकग्निशन वाला चार्ट देखा, इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, राइट. फिर हमने मेजर इंस्पेक्शंस की बात की, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स की बात की, और देयर आफ्टर मेजरमेंट के कॉस्ट मॉडल है, रिवोल्यूशन मॉडल है, और एट रिकग्निशन के लिए तो कंपलसरी कॉस्ट मॉडल, लेकिन आफ्टर रिकग्निशन के लिए दोनों है, कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल. वो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने उस मॉडल्स की थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बात कर ली है, राइट. ये पूरा हमारा चार्ट मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पूरा इतने तक का स्टैंडर्ड आप रिवाइज कर लीजिएगा. आगे का हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. थैंक यू.